हेलो, کیا فرمانا ہے؟ فرماؤ صاحب. جی ملا اطہر صاحب، کیا حال ہیں؟ اور حکم فرماؤ، کیا حکم فرمانا ہے؟ حکم تو نہیں فرمانا ہے، بس آپ کی ایک تحریر نظر سے گزری کون سی تو میں نے آپ کو کال کی ہے. تحریر؟ جی جی جی، کون سی تحریر؟ دعوت اہل فرقہ پرست طاقتوں کو، یہ عنوان ہے. نمبر آپ کا دیا ہے نیچے. مجھے بھیجنا کس نے لکھ کے بھیجی؟ یہ یوٹیوب جو چینل ہے امام علی رضا نام سے، جس پر آپ کی آڈیو ویڈیو آتی ہے، اس پر یہ جی جی کیا ہے؟ دعوت اہل فرقہ پرست طاقتوں کو. اچھا، وہ فیس بک پہ ہوگی تو اس میں لکھا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، سنی ہے، اہل حق ہے، جب تک اس سے کھلا کفر ثابت نہ ہو. ہاں، آگے لکھا ہے مکہ مدینہ شریف کے امام حق پرست ہیں، ان کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرنا صحیح ہے اور ضروری ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں، شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا چلے ہم ان دو باتوں پہ بات کرتے ہیں. دو باتیں؟ یہ پہلی عبارت پڑھی ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، لمبی تحریر ہے یہ. کون سی دو باتیں؟ یہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، سنی ہے، اہل حق ہے، جب تک اس سے کھلا کفر نہ ہو. یہ تو آپ بھی مانتے ہو. ہاں جی بالکل. آپ بھی مانتے ہو کہ نہیں اس بات کو؟ جب اس سے کفر کا صدور جب واضح ہو جائے کفر، تو کافی کہا جائے سب مانتے ہیں اس بات کو، دیوبندی بھی مانتے ہیں اس بات کو. اچھا دیوبندی مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، دیوبندی مانتے ہیں. اچھا جس سے تمام دیوبندی قادیانی کو کافر مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو کافر مانتے ہیں، تمام دیوبندی وسیم رضوی کو کافر مانتے ہیں، سلمان رضوی کو کافر مانتے ہیں، تمام دیوبند والے اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، حیات النبی. اطہر صاحب یار تو اپنی بولتے ہیں، کم سے کم دوسروں کو بھی موقع دیا کریں اطمینان سے. آپ نہیں کہیں بھاگے جا رہے، آپ نے یوٹیوب پہ ڈال لی ہے، وقتاً فوقتاً ہم بھی یوٹیوب پہ ایک آدھ آڈیو ڈال دیتے ہیں تاکہ عوام استفادہ حاصل کر سکے. گفتگو ایسی ہونی چاہیے. حکم فرما ہے، آپ بتاؤ کس چیز کو کافر چاہیں، کس چیز سے نہیں. ٹھیک ہے، اب ابتدا جو آپ کی یہ اس تحریر کی جو ابتدا ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ حق پر ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ گو ہے. حضور کا فرمان ہے لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں کسی کو کافر نہ کہا. حدیث کو اس میں فتح رضویہ پڑھ لینا، جلدی 4 صفحہ 513 میں. اور آپ نے ابھی جو ذکر فرمایا جناب کہ قادیانیوں کو تمام کافر کہتے ہیں. ہاں جی، دیوبند والے، تمام دیوبند والے مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں. ایک دو مجھے فتویٰ آپ ارسال کریں گے ذرا ہاں علماء دیوبند کے؟ بالکل بالکل. امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا، کھلا رد کیا. کتاب کا نام رد قادیانیت آپ پڑھ لینا. میں انشاءاللہ میں ان کی نہیں، میں ان ائمہ دیوبند کی بات کر رہا ہوں جن سے دیوبند کا تفقد قائم ہوتا ہے. میں ان کی بات نہیں، میری بات سنیں اطہر صاحب، میری بات سنیں. میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن سے دیوبندیت پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، جن سے دیوبندیت کا تفقد قائم ہے. جو 4 علماء ہیں علماء دیوبند کے، جو بڑے اکابر ہیں، ان سے بھی بڑے ہیں. وہاں نہ جائیں، میں وہاں تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان 4 کی بات کر رہا ہوں. میں وہاں تک کی بات نہیں. دیکھیں وہاں میں ان کا ذکر ہی نہیں کرتا حاجی صاحب کا، الحمدللہ وہ ان کے عقائد بالکل درست تھے، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں تھے نا، وہ تو اللہ کے ولی تھے. بگاڑ تو نیچے سے پیدا ہوا ہے نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں، مجھے ان کا کوئی فتویٰ دکھا دیں ان 4 میں سے. انشاءاللہ میں تلاش کر کے بھیجوں گا. ٹھیک ہے، تلاش کر کے. تو ابھی آپ نے یہ بات اب موبائل پہ بات کرتے کرتے بھیج دوں میں. کیسی بات نہیں تو آپ نے تحقیق نہیں کی، اور مجھے یقین کیا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ان کا کوئی فتویٰ قادیانیوں پہ نہیں ہے. آپ کو میں بھجواؤں گا جب آپ کہہ رہا ہوں تو پھر آپ مانتے کہ نہیں؟ فتاوی قادریہ ہے لدھیانوی صاحب کی، آپ نے پڑھی ہے فتاوی قادریہ؟ یہ جو شہر ہندوستان ہے نا، امام الہند حضرت مولانا عثمان ہارونی صاحب، شاہی امام پنجاب، ان کے دادا نے تو پورا قادیانی کا سلسلہ ختم کیا تھا. یہ سب دیوبند والے ہیں.
میں جو بات کر رہا ہوں، جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی نوبت آئی تھی نا پڑوسی ملک کے اندر، جو بشیر احمد ایم اے جو قادیانی کا بیٹا تھا، بشیر احمد ایم اے، خبر ہے آپ کو کچھ؟ اور یہ جتنے بھی چیف جسٹس تھے، ہاں بشیر احمد مرزا قادیانی کے بیٹے کا نام ہے، آپ کو تو خبر ہی بھی کوئی نہیں۔ بشیر احمد صحیح، ہاں ٹھیک ہے۔ اور جو قادیانی کی جو نمائندگی کر رہا تھا تو انہوں نے تحذیر الناس ہی کو میدان میں رکھ دیا تھا کہ اگر جب تم ہمیں کافر کہنے پر تلے ہوئے ہو تو اس سے پہلے تم ان دیوبندیوں کو کافر قرار دو۔ میں اس طرف نہیں جا کر میں یہ عرض کر رہا ہوں، چلو 20 سیکنڈ رکیں آپ۔ اگر تھانوی صاحب یا ناتوی صاحب کے بال کو کسی بھی دیوبند والوں نے اگر بال مبارک کے بٹوایا ہو تو میں میں بات کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا قاضی پاکستانی اپنے بال کو بال مبارک تم لوگ ارے میں بات کر رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف سے برابری کر لی۔ دیکھیں میری بات، قاضی پاکستانی نے اس کی گستاخیوں پہ پردہ ڈالا، میں اس کا جواب ابھی دوں گا نہیں، میں بدل دیا لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک اختار کہلوا رہا ہے۔ یار دیکھیں اطہر صاحب، اس طرح سے تو کوئی بات نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں نے ابھی آپ سے کیا قاضی کا نام آتے سے کیوں ہوائیاں اڑنے لگتی؟ نہیں الحمدللہ وہ ایسا مرد مجاہد ہے جتنا سنیت کا کام اس نے دنیا میں عام کر دیا ہے اس مرد قلندر نے، کہ شاید ہی کوئی ہو جو سنیت کا کام میری بات تو سنیں، میں قادیانیوں کی بات کر رہا تھا، یہ فتاوی قادریہ ہے، پہلے مسئلہ قادیانی، میری بات 15 سیکنڈ جو ابھی آپ نے الیاس قاضی کو مرد قلندر کہا، اسی پر میری بات اگر صاحب آپ مجھے عوام سنتی ہے کم سے کم گفتگو ایسی دنیا میں الیاس قاضی سے بڑا کوئی ولی ہوا ہے کیا؟ نہیں، بہت بڑے ولی ہیں اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے الیاس قاضی سے بڑا ولی دنیا میں کوئی ہوا جو آپ کہہ رہے کہ مرد قلندر نے بہت بڑا کام کیا اس نے، بالکل اپنے مسلمانوں کو ٹی وی مسجد میں دکھوا دی، مدینہ کا مذاق بنایا ہے کہ انسان کو مدینہ کہہ کے بلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نیچے رسول کہتا ہے، میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے خواب میں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے آپ بنا رہا ہو قلندر بنا رہا ہوں، آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صفحہ 37 پڑھ لینا، فیضان کہنا، گاجر مولی پکا کر سلام کہنا، دیوبند والوں کی گالیوں کو ہاتھ میں لگا کر سلام کہنا، ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، اس کو تم بتا رہے مرد قلندر اتنا بڑا کام کیا؟ اسلامی پروگرام دیکھنا کیا قباحت کی بات ہے؟ پوری دنیا اس نے جو کہا مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، آپ مانتے ہو اس بات کو؟ آپ مانتے ہو؟ خود سے بھٹک گئے آپ اطہر صاحب، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں فتاوی قادریہ جو ہے، میری بات سنیں اللہ کے بندے، میری بات سنیں، یہ مولانا محمد لدھیانوی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ مولانا محمد لدھیانوی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ میں علمی بات کر رہا ہوں، یہ جاہلانہ گفتگو کی توقع میں آپ سے نہیں کرتا، لیکن آپ یہ جاہلانہ گفتگو نہ کیا کریں، تو گفتگو تو آپ نے چھیڑی نا، یہ گفتگو آپ نے چھیڑی ہے مولانا الیاس، پہلے اس پر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، اس پر میں بات کروں گا، فی الحال اپنی تحریر پر آئیں، اس پر جواب میں دوں گا، لیکن فی الحال آپ اپنی تحریر پہ آ جائیں۔ بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے مولانا محمد لدھیانوی صاحب کا نام سنا ہے جن کی فتاوی قادریہ ہے؟ بہت بڑے عالم تھے وہ، مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر جو ان کا جو فتاوی قادریہ ہے، یہ مولانا عبداللہ لدھیانوی کا اولین فتویٰ 1884 ہجری عیسوی۔ مولانا عثمان صاحب جو ابھی شاہی امام پنجاب ہیں، ہاں تو میں جو بات کر رہا ہوں میری بات تو سنیں گے آپ؟ خاندان میں ہوں گے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے آپ سن لیں، یہ صفحہ نمبر ہے 58 فتاوی قادریہ۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام تر جانب سے جب مرزا قادیانی پر فتویٰ کفر آنے لگے تو لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اکثر نے تکفیر کی رائے کو تسلیم نہ کیا، کس نے؟ علماء دیوبند میں، کہتے ہیں بلکہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ہماری تحریر کی تردید میں ایک تو مار لکھ کر ہمارے پاس روانہ کیا اور قادیانی کو مرد سوالے قرار دیا۔
जी अब बताएं। गुमराही साबित नहीं होगी, तहकीक नहीं। ये कह रहे हैं कादियानी पर कुफ्र के फतवे आ रहे थे। अरे हर तरफ से मिर्जा कादियानी पर कुफ्र के फतवे आ रहे थे। ये बौखलाए नहीं, मैं कह रहा हूँ हर तरफ को इकरार कर रहे हैं कि हर तरफ से मिर्जा कादियानी पर तकफीर हो चुकी थी। अरे भाई यजीद कहाँ यजीद पर चले गए, उस पर बात हम कर लेंगे, लेकिन आप फिलहाल कादियानी पर बात करें ना। हो सकता है उनके सामने पेड़ी नहीं होगी गुमराही की। तो ये मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब कह रहे हैं कि हर तरफ से कादियानियों की तकफीर हो चुकी थी, इकरार भी कर रहे हैं इस बात का। उसके बावजूद भी यजीद के बारे में भी तो ऐसा ही है। उसके बावजूद भी यजीद की अच्छा यजीद की तरफ कैसा मामला है? हाँ जी, उसका कुफ्र क्या इस तरह से आया है? एक इमाम ने उसको मुसलमान भी करार दिया है। नहीं, उसका नहीं, यजीद का कुफ्र का आया है क्या? कादियानी का कुफ्र आया नहीं है। लिखा है कि उन्होंने मुसलमान माना और दो इमाम ने, एक इमाम ने काफिर माना, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम अबू हनीफा ने काफिर नहीं माना। आप बौखलाएं नहीं। देखें आतर साहब, मैं कितने सुकून से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब ये लुधियानवी साहब अल्लाह के बंदे इधर आए, अरे इधर आए भाई, अल्लाह के बंदे इधर आए। मैं कह रहा हूँ ये लुधियानवी साहब कह रहे हैं कि जब मिर्जा कादियानी पर, अरे अल्लाह के बंदे, ओह तातर साहब मेरी बात सुने। अतर साहब अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। अभी मेरा मौजू है आपकी तहरीर, अभी मेरा मौजू है आपकी तहरीर। ये मौलाना लुधियानवी साहब खुद कह रहे हैं अपने अकाबिर के हवाले से, रशीद अहमद गंगोही ने और तावील कर दी और मर्द साले लिख दिया। आज और जब दुनिया में मिर्जा कादियानी को काफिर कहा जा रहा है। अच्छा, ये रईस कादियान किताब का नाम सुना है आपने, आमिर उस्मानी साहब की? हाँ, वो तो मशहूर आदमी थे, बहुत मशहूर थे, है ना। अब ये मौलाना मानामत तजल्ली जी रईस कादियान का मैं जवाब न बन पाए तो अब सुन तो लें, इबारत तो सुन लें। सफा नंबर 372 मौलाना गंगोही का मकतूब इन्होंने नकल किया है। जिन हजरात ने फतवा तकवीर से अख्तलाफ किया उनमें से हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, अच्छा जो इन दिनों उलमा, हाँ जी बताएं। ये इन बातों से फायदा क्या होगा? मतलब आप बार बार करते हैं, आपने झूठ क्यों बोला? आप ये कह रहे हैं कि उलमाए देवबंद नहीं, आप फायदा ये होगा, आपने झूठ बोला है। अभी आपने तहरीर में झूठ बोला और आप ऑडियो में भी झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि तमाम देवबंदी काफिर कहते हैं कादियानी को, तो आप ये हक क्यों नहीं बोलते? मर्द साले मानते हैं वो तो मिर्जा कादियानी को, गंगोही की क्यों नहीं बताते? अच्छा, मैं एक किताब और बता देता हूँ। आपने नाम सुना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान कासमी साहब का? सुलेमान कासमी साहब, मैं जवाब दूंगा उसका, लेकिन फिलहाल बात चल रही है कादियानियों की। खुला रख किया, फिलहाल बात चल रही है, उन्होंने अरे भाई सरकार का पैगाम अतार के नाम जो रिसाला था उसमें तब्दीली कर दी, रुजू कर लिया है उन तमाम तर चीजों से दावत इस्लामी ने, समझे। मैं ये कह रहा हूँ ये जो है एक मुख्तसर हालात जिंदगी अज मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब के जो हालात पर किताब मबनी है, ये आप जानते हैं उनको? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब, अरे आप सुन के जाए ना, आप सुन के जाए अदर साहब, बात सुन के जाए यार, ये ठीक नहीं है बात। हेलो जी अदर साहब, तो ये सफा नंबर है 54 इसी किताब का। अब इसमें लिखते हैं जनाब रायपुरी साहब के हवाले से कि वो मिर्जा कादियानी से क्या कहते थे? आपने मिर्जा की किताबों में कहीं ये भी पढ़ा था कि उनको अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम हुआ है कि मैं तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल करूंगा, अलावा उन दुआओं के जो तुम्हारे अच्छा शरकत रिश्तेदार वगैरह के बारे में हो। अच्छा, फिर कहते हैं वो आपने मिर्जा को उसी इल्हाम और वादा के हवाले देकर एक खत लिखा और कहा कि मेरी आपसे कभी भी इस तरह की शिरकत नहीं है, इसलिए आप मेरी हिदायत और शरह सदर के लिए दुआ फरमाएं। ये कौन दुआ करा रहा है मिर्जा कादियानी से? ये जनाब अब्दुल कादिर रायपुरी साहब। हाँ जी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे अब्दुल कादिर रायपुरी। तो इन्हें दुआ कराने के लिए मिर्जा कादियानी मिला था जो झूठा नबूवत का दावेदार था।
वो दज्जाल, वो मक्कार जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, तमाम अंबिया की गुस्ताखियां की। शाही ने जब इस्तिलाह जहाँ पर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी है, अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ बगदादी साहब, मेहराज बगदादी साहब पर कि इन्होंने कुरान की अतर साहब मैं ये कह रहा हूँ, अतर साहब तो ऐसे झूठ है ये किताब की बात है। अच्छा आप ये कह रहे हैं 5 साल पहले, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं ये झूठ है जो मैं पढ़ रहा हूँ? बता रहा हूँ मैं तो 5 ये साल मैं तमाम बता रहा हूँ कि ये मैं बहुत पुरानी किताबें पढ़ रहा हूँ इनकी। ये है कादियानी देवबंदियों के नजदीक, जिससे देवबंदी हजरात कादियानी से दुआएं करा रहे हैं, मर्द स्वाले मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तमाम देवबंदी काफिर कहते हैं। हाँ जी, तो मंदिर इस्लाम में योगा हो रहा था। अरे अल्लाह के बंदे, मैं क्या कह रहा हूँ, बात में क्या कर रहा हूँ, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवा क्यों लूटा? अतर साहब, तो कभी कुछ है अतर साहब पहले कादियानी पर ये देवबंदी तो मिर्जा कादियानी से दुआएं करा रहे हैं, हुआ तो मंदिर साले करार दे रहे हैं, तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो आप? ईट का जवाब पत्थर से दिया जाता है यहाँ। क्या जवाब दे रहे हैं आप? योगा करा के देवबंद वालों ने बाद में अरे भाई योगा छोड़ो, अभी आप इधर आए हजरत वाला इधर आए, आपके चंद मुरीद जो रह गए हैं। अरे भाई सोनिया गांधी आई थी या नहीं आई थी? अरे देवबंदियों ने तो इंदिरा गांधी को बुला दिया था मेरे रसूल पर, और गांधी को बिठा दिया था दिल्ली की जामा मस्जिद पर। उसे छोड़े, उस बहस को न छेड़े। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये मिर्जा कादियानी को जो ये नेक साले मोमिन कह रहे हैं और उनसे दुआएं करा रहे हैं, तो ये कौन सी देवबंदी है? अरे भाई छोड़े, वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह सही है, वो छोड़े, उनको छोड़े, हाशिम मियां को भी छोड़े, हाशिम मियां को छोड़े, अल्लामा मदनी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहू को छोड़े। अहले सुन्नत की उलमा का जिक्र क्यों कर रहे हैं अभी आप? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताज अहले सुन्नत के तमाम उलमा। अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है ये। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां को अपने सर का ताज मानता हूँ, और तमाम उनकी ताज़ीम और इज्जत करते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, सब मानते हैं, सब मानते हैं, इतना पता छोड़ो। फिलहाल ये बताओ, अरे फिलहाल ये बताओ, ये कादियानियों से दुआ जो कराई जा रही है, ये क्यों कराई देवबंदियों ने? अरे भाई ये देवबंदियों ने क्यों मनाई? अरे कोई ऐलान नहीं हो रहा है, कोई ऐलान नहीं हो रहा है, कोई ऐलान नहीं हो रहा है। तो वो मसला के हज़रत को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू आलिया खुद फरमाते हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं किशोच भी हूँ, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं बरेलवी हूँ। वो कहते हैं कि मुझे फक्र इस बात में होता है कि मैं बरेलवी हूँ। ये उनका हक बता रहा हूँ मैं, अल्लामा शेखुल। अतर साहब ये तरीका ठीक नहीं, फोन काट के भागना। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वाला मनी तबल हुदा जी, जी आप कल तो कॉल कट गई थी, वो बात हमारी और आपकी अधूरी रह गई। आप फरमा रहे थे हाशिम मियां साहब के हवाले से, दावत इस्लामी के हवाले से, अल्लामा शेखुल इस्लाम के हवाले से। तो मैंने भी ये कल बात अर्ज की थी कि देखे कुछ ना कुछ कमी हर बंदे में थोड़ी बहुत हुआ करती है, लेकिन उनके अकायद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अहले सुन्नत वाले हैं। ठीक है, मैंने फतावा कादरिया की कल बात की थी, और ये रईस कादियान की बात की थी, आमिर उस्मानी साहब की, और ये मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब की। तो ये हाशिमी मियां साहब को आप और ये सुन्नी मानते हो? और ये जनाब हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब की बात की थी, जो मिर्जा कादियानी से दुआएं कराया करते थे। कोई झूठा मुद्दई जो था नबूवत का, झूठा दावेदार कहता था मुझे वही है। भी शुरू में दावत इस्लामी तायद की थी, बाद में रुजू कर लिया, बाद में सख्त बयान किया उसके खिलाफ दावत। ये तो होता रहता है, शुरू में आदमी सही होता है तो उसकी तायद की थी इलियास काज़ी की। साहब को ये तो इंडिया की बात है, मुफ्ती अख्तर साहब का आप बात का बयान सुनो, कितना खुला रद्द किया इन लोगों का, दावत इस्लामी वालों को सुनाऊं? तो क्या काफिर करार दिया उनको? ये कहा कि मसले की हालत में मुबल्लिग नहीं है, और इन्होंने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई है, एक आम आदमी की आवाज को अल्लाह के रसूल की आवाज बताकर सुना। कहाँ पर ये अल्फाज हैं हुजूर ताज शरिया के? टीवी वाले अल्फाज कहाँ है? मैंने फतावा ताज शरिया का भी मुताला किया है, और हजरत के तमाम जो है ना तकरीर है, हाँ मैंने तकरीर बयानात सारे सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अहले सुन्नत के हर आलिम को सुनता हूँ। हाँ ये जरूर है कि दावत इस्लामी के हवाले से ये फरमाया था कि मसले के आला हजरत के मुबल्लिग नहीं। हाँ जी, तो मसला के आला हजरत का मुबल्लिग होना और कितनी बड़ी बात है, ये हर बंदा भी नहीं हो सकता।
तालीमात आला हजरत मसलेदार का मुबल्लिग क्या माना जाए, आप क्या मानोगे इसे? मतलब कि आला हजरत के मुबल्लिग की मतलब ये टीवी और वीडियो कशी के हवाला से जब अल्लामा शैखुल इस्लाम यार ये कादियानी की बहस छोड़ के आपने ये कादियानी की बहस छोड़कर मेरी बात सुने मुल्ला अतर साहब, मेरी बात सुने। कल और हमारी आपकी गुफ्तगू हुई थी और यही काम आप करते हैं, सुनते दूसरे की नहीं है। बहस जहाँ मौजूद बहस आपकी तहरीर है जो आपने तहरीर शाया की थी। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ बात यहाँ उसकी है जो कहता है हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकला। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इसका दावेदार है, वो कहता है हक वही है। मजबूती से अरे भाई तो वहाँ दीन से मतलब क्या है? कोई नया दीन है? जो मेरी वहाँ क्या नया दीन है उसको जवाब ले लें। आला हजरत का मतलब हरगिज ये नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। तो हत्तल इम्कान अमल कर लेना, यानी कोशिश बस, लेकिन मेरे दीन पर मजबूती से अमल करना। ये दीन वही आला हजरत का दीन कौन सा है? अल मलफूज के अंदर नहीं है ये बात, ठीक है? ये वसाया के अंदर है, लेकिन वहाँ के आला हजरत ने ये बयान किया कि मेरा दीन नया दीन है, कोई दीन इस्लाम ही को वहाँ करार दिया है। मेरे दीन से मुराद आला हजरत की वो दीन इस्लाम ही है, कोई नया दीन नहीं है। उन्होंने कहा कोई नया दीन नहीं है, असल इम्कान अमल करना, शरीयत से अलग करके कोई नया दीन नहीं है। से कायम रहना। यार अतर साहब देखें, ये इस तरह की बात ना किया करें। अगर मैंने ही ऐसी ही इबारत को इससे भी खतरनाक इबारत देवबंदियों को दिखाने लग जाओ, जो देवबंदी ये कहते हैं कि उस दिन पर कायम हो जाओ जो रशीद अहमद गंगोही ने और नानौतवी ने कायम किया। मेरी बात सुने, वो देवबंदी तो ये कहते हैं, जनवरी को कैसे मुसलमानों ने मेरी बात सुने भाई, मैं बात कर रहा हूँ, आप गुमराह आप कर रहे हैं आवाम को, मुसलमानों को आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये आपके मुर्दीन जो आपसे मुतनफिर हो रहे हैं, मेरी बात सुनिए अतर साहब, जो आपके मुर्दीन आपसे मुतनफिर हो रहे हैं, खुदारा आप राह रास्त पर आ जाएं, अपने बातिल अकायद नजरिया से तौबा कर लें। समझ रहे कि नहीं? ये आपके नजराने जो बंद हो गए हैं, ये नजराने आपके बंद हो गए हैं। मेरी बात सुने अतर साहब, ये अतर साहब उसका जवाब तो दे भाई, आपने कल की बात कही थी। देखें मेरी बात सुने अतर साहब, क्या ऐसे ही जाएंगे आप? इसी तरह से जाएंगे? जो हरकत आप कर रहे हैं, देखिए ये उसको लड़की मत देना, देवबंदी को मौलवी जकरिया अरे सुने अतर साहब, ये मौलाना जकरिया साहब का नाम सुना है आपने? अरे शेखुल अजीज का हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फज़ाइल अमाल में दुरूद शरीफ कितनी फजीलत लिखी है, बांधा है। ठीक है, बांधा है बिल्कुल, ठीक है, मानता हूं। इनकी ये किताब है सोहबत वाउलिया, बहुत बड़ी जबरदस्त किताब है और छोटी सी है। हाँ, इसमें लिखा है सफा नंबर 172 पर 172 पर कि हमारे अकाबिर हजरत गंगोही हजरत नानौतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो, अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, लेकिन उनकी इत्तबा में लग जाओ। किसकी इत्तबा में? रशीद अहमद गंगोही की, कासिम नानौतवी की। बड़ी किताब। हाँ जी, तो ये किसकी इत्तबा में लगा रहे हैं? रशीद अहमद गंगोही की इत्तबा किसकी? आती रसूल कहाँ गए आप? क्या कहा था उन्होंने? ये कह रहे हैं कि रशीद अहमद गंगोही और नानौतवी की इत्तबा में लग जाओ, अब ये पैदा होने से रहे। और ये दीन जो कासिम नानौतवी और गंगोही ने जो पैदा किया है, लफ्ज़ पैदा भी है कि जो पैदा किया है, यानी कि इन्होंने जो दीन जो कायम किया, लफ्ज़ कायम किया है, सॉरी पैदा नहीं, लफ्ज़ कायम का इस्तेमाल किया है, जो कायम किया है, तो कौन सा दीन कायम किया है नानौतवी गंगोही ने? नहीं, आप उस पर एतराज कर वसाया पर, आप वसाया पर जो एतराज कर रहे थे, हाँ जी, मुझे इसका क्या बनेगा? देखूंगा तो सही में क्या लिखा है क्या नहीं। और ये मरसिया गंगोह में आप अशार पढ़ेंगे तो आप जो है एक बात सुनो, मैं की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं कादियानी की बात कर रहा हूँ। पुरखों ने कोई गलती कर दी तो हम तो भुगते यार। मेरी बात सुने, गलती होगी हमारी, देखे अतर साहब, बात आपकी मेरी आपकी तहरीर पर शुरू हुई थी। गलती हुई है तो हमारे पुरखों से अतर साहब, हमारा अकीदा नहीं है, तो आप ये मानते हैं ये अकाबिर देवबंद आपके पुरखा हैं? आपके पुरखों पर गलती नहीं हुई? नहीं, हमारा तो यकीन नहीं, मासूम अनिल खता हमारा अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद। मेरी बात सुने, मेरी बात चाहे मदनी हो, अरे मेरी बात भाई, इधर उधर की बात ना करके हम इस पर बात क्यों नहीं करते? आला हजरत को नहीं मानेगा, हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे, ये ऐलान किया था इसी साल। तो वो इनकार करते हैं क्या मसला के आला हजरत का? हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं सैयद हूँ कि चोचवी हूँ, फिर भी मुझे खुद को
बरेलवी कहलाने में फख्र महसूस होता है। ये अल्लामा शेखुल इस्लाम का अल्फाज बता रहा हूँ आपको। मैं अल्लामा शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहुल आलिया का अल्फाज बता रहा हूँ। उनको फख्र होता है इस बात में, ने भी ऐलान किया था बरेली से एक बार। वो कहते हैं कि मुझे बरेलवी कहलाने में फख्र महसूस होता है। फख्र उनको सैयद कहलाने में नहीं होता, आले रसूल कहलाने में नहीं। फख्र किसमें महसूस कर रहे हैं? वो एक आले रसूल बरेलवी कहलाने में। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ होना चाहिए कि हम मोहम्मदी हैं, तो अहले हदीस मोहम्मदी कहलाते हैं। हाँ जी, तो अहले हदीस खुद को मोहम्मदी कहलाते हैं। बेशक हम भी मोहम्मदी हैं, हमें मोहम्मदी भी हैं, कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, शोहरवर्दी भी हैं। हम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। मुझे फक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, सच्चा पक्का सही अकीदा हूँ, जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, मैं उस पर उसका पैरो हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कादियानी की जो बात आपकी मेरी चली थी वो बात तो फिर भी रह गई। आवाम सुनेगी तो क्या समझेगी? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? कब का चला गया कादियानी, लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन अकाबिरीन देवबंद तो उसको मर्द साले करार दे रहे हैं, उससे दुआएं करा रहे थे। अरे पहले बहुत बड़ा आलिम था, सही था वो जमाने में, जब साले करार दिए थे सही था। जैसे अगर मैंने लिया काजी को सही करार दिए तो शुरू में अगर न्यायसी दोनों के भेज दूंगा, थोड़ा गलत थोड़ा सही माना था। जब बात से हालात देखे कि ये बाल को बाल मुबारक के लिए बंटवारा लब्बैक अफ्तार के नारे लगे, बड़े पीर साहब को कहा मुजद्दिद मिलके साहब किराम मुजद्दिद मिलके सलाम का मजाक बनाया, सलाम देना चाहिए। पहले उसको इसके बारे में अच्छे था, क्या रद्द किया उन्होंने? काफिर करार दिया। यानी के बारे में लिखा होगा मर्द साले के जमाने की हालत ऐसी नहीं थी क्या? जमाने में नहीं, मौलाना मोहम्मद मौलाना होता है बढ़ता है। अतर साहब फतावा कादरिया के अंदर मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब कह रहे हैं कि तमाम जानिब से मिर्जा कादियानी पर कुफ्र के फतवे लग रहे थे। आलम कदीरी की मेरी बात तो सुने भाई, अरे बात तो सुनने अल्लाह के बंदे, अरे आवाम सुनेगी तो क्या सोचेगी? अतर साहब यार कैसी बात कर रहे हैं आप? मुनाजिर आजम हिंद, अरे आप बहुत बड़े मुनाजिर है, बहुत बड़े अल्लामा तो दर फजीलत है। मेरी बात सुने, इस तरह से बात नहीं होती। अतर साहब बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। वालों ने मर्द साले का वो कह रहे हैं लुधियानवी साहब, अरे लुधियानवी साहब सुने, लुधियानवी साहब कहते हैं कि तमाम चारों तरफ से बर्रे सगीर ही नहीं तमाम दुनिया से उसको काफिर करार दिया गया था। अरे पूरी दुनिया जब उसके मिर्जा कादियानी की तकफीर कर रही थी, अरे अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह के बंदे, अरे भाई देखिए मेरी बात सुने अतर साहब, ये फिरका परस्ती इस तरह की गुमराहियत बंद करें आप कौन सा फिरका इजाद करना चाह रहे हैं? आप कौन सा फिरका इजाद करना चाह रहे हैं? भाई ये तो बताएं, कौन सा गिरोह आप इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके साथ तो वैसे कोई बचा तो है नहीं। देवबंदियों के अलावा आपकी तायद तो कोई करता नहीं है सुन्नियत में, कोई तायद नहीं करता आपकी, सिर्फ देवबंदी है, दो चार है। मैं ये कह रहा हूँ कोई नहीं करता सुन्नी उलमा, कादरी जो कटक उड़ीसा में मुजाहिद सुने उनको लाइन पे ले। अरे मैं कह रहा हूँ उनको लाइन पे ले, मौलाना मुफ्ती सुफियान कासमी उनको भी लाइन पे ले। अरे लाइन पे ले, जितने भी है लाइन पे ले। यार क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं ये कह रहा हूँ ये आपके जो शाह अब्दुल आदिर रायपुरी जो मिर्जा कादियानी से झूठे नबूवत के दावे से उस ताफिर जहन्नमी से दुआएं करा रहे थे। चलो सुफियान साहब को लाइन पे लें। अच्छा मैं देखूं कितनी तायद करते हैं आपकी। मोबाइल दू है, मैं बदलाऊं मोबाइल। ये शादी से मेरे साथ काम न लिया करे। आप जानते हैं मैं उस शहर का रहने वाला हूँ जहाँ हजरत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, जहाँ मुसा साहब रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, जहाँ शाह आलम, जहाँ कुतुब आलम, इतनी बड़ी सरकारें आराम फरमा रही है। मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ आपसे। कलंदर के मज़ार पे मैं आया हूँ। तो आपको जब भी तौबा की तौफीक नहीं होती कि आप अपने बातिल अकायद नजरिया से तौबा कर लें, जब इतनी बड़ी हस्तियों में इनकी बारगाह बातिल अकायद में है क्या? जरूरियात दीन का मुल्क इमाम को मुसलमान मानना बातिल जरूरियात दीन है, काफिर को काफिर कहना। इमाम मोमिन है, हदीस में फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, बिल्कुल अरब। कौन से अरबियों के बारे में? जो आज के अरबी है
हाँ जी, इनके बारे में वही देखो वहाँ क्या नहीं हो रहा। शराब, ये शराब पी रहे हैं, जुए के अड्डे खोल दिए, सिनेमा हॉल खोल दिए, सलमान खान को वहाँ बुलाकर उससे फंक्शन वगैरह कराते हैं। योगा हो गया, मतलब मुशायरा हो गया, तो मर्दों की बात करते हो तो इन मर्दों की बात कर रहे हो जो खाने काबा का इमाम था मना रहा है। और सुनो मेरी बात, उसका नाम भी बताऊँ आपको, जो खाने काबा का इमाम था वो फिल्म बना रहा है। हाँ जी, अच्छा एक किताब है राह सुन्नत। अच्छा एक किताब है, अच्छा मेरी बात सुन, एक किताब है राह सुन्नत, आपने नाम सुना है इसका? मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की, बहुत मशहूर किताब है, मशहूर किताब है। सफा नंबर 168 पर कहते हैं कि हरमैन शरीफैन में जुल्म शाया है, जहालत कसीर है, इल्म कम है, मुनकिरात का ज़हूर है, बिदअत राइज है, हराम खाया जाता है, दीन शुबहात भी बकसरत हैं। ये हरमैन शरीफैन की बात कर रहे हैं सरफराज खान साहब। अब बताएं आप। और एक फतवा सुना बरेली का आपने? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, अब जवाब इसका भी दे रहे हैं। अरे ये तो बता दिया, एक फतवा नहीं सुना बरेली का? ये सरफराज खान साहब तो ये कह रहे हैं। हाँ जी, अरे तो एक और मैं बरेली वालों का तो सुन लो फतवा क्या है। तो आप क्यों इतने बड़े बंदे बात कर रहे हैं? हज मत करो, जाते हो आपको तो फेक नहीं होती। मेरी बात सुना साहब, आप अहमदाबाद तशरीफ ले आए और मेरे हाथ पर तौबा कर लें आप। किताब का नाम है तंबीहुल हुज्जा लिमन यजूज़ु बिल्तिवाइल हज्जा। उसका मैंने एक मरतबा जवाब दिया है कि हुकूमत में हज मत करो। मैंने उसका जवाब आपको दे चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप अहमदाबाद शरीफ आ जाएं, तशरीफ लेकर, मेरे हाथ पे तौबा कर लें। आप लोग क्या जवाब दे चुके? मेरे हाथ पे तौबा कर लें आप, मेरे हाथ पे तौबा कर लें आप। ये आपको मैं दावत दे रहा हूँ। करो कि हज करने क्यों जाते हो तुम लोग वहाँ? हज फर्ज है, हज फर्ज है। उन वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। हज मत करो, हुकूमत अरे कहाँ इनकार कब किया था पता नहीं आपको? किस वजह से इनकार है वहाँ पर? इनकार इस वजह से है क्योंकि वहाँ तनवीरुल हुज्जा मेरे पास मौजूद है, उसका मैंने जवाब दिया है, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि उसको क्यों मना किया। उसकी वजह ये थी कि वहाबियों की जब वहाँ हुकूमत हो गई तो उनको नुकसान पहुंचे ताकि वो वहाँ पर खस्ता हो जाए। और हज फर्ज है लेकिन उनके पीछे नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है कि उन वहाबियों के पीछे हम नमाज अदा करें। ये आप मान रहे हो कि मना किए थे ना? मना इसलिए किया था क्योंकि आप पूरी इबादत पढ़ लें, दोनों सफे पढ़ लें आप, सियाक और सबाक पढ़ लें आप, आपको समझ आ जाएगी। इनकार करने की रोकने की आवाम को रोकने की वजह उन्होंने अपनी एक राय पेश की थी। बर्रे सगीर के सुन्नियों को एक मशवरा, एक राय पेश की थी कि अगर इस पर कदम अरे बात तो सुने आप, जवाब तो सुन लें। वो आवाम बर्रे सगीर के उलमा को और सुन्नियों को ये पैगाम दिया गया था, बतौर पैगाम वो दर्ज है वहाँ पर, कि अगर रुक जाएं तो उनको भारी तादाद में नुकसान होगा, वहाबियों की जड़ें उखड़ जाएंगी वहाँ से, इसलिए मशवरा दिया था। बहुत बड़ा मतलब नहीं है क्या? अरे भाई क्यों नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये जो आपके कह रहे हैं। अच्छा कदर मकदूरा जो अल्लाह ने लिख दिया मिलकर रहेगा, और अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, जर्रा नहीं हिलता, कोई नुकसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, ना नफा दे सकता है। तो ये हमारे हज न करने से कौन सा नुकसान हो जाएगा अरब वालों को? तो अच्छा, तो ये अभी तुमने बाबरी मस्जिद की बात की थी और ये राम मंदिर जो बन गया है, तो फिर ये किसके हुक्म से हुआ है फिर पहले बताएं। अच्छा तो फिर क्यों परेशान है इस पर तमाम सुन्नी, तमाम दुनिया का मुसलमान? यही आपकी तरफ सोच के बैठ जाएगा इंसान कि चलो अल्लाह की मर्जी हुई थी, अल्लाह की मर्जी थी, ये बनाया किया है। नहीं यही कहना चाह रहा हूँ, आपका इस्तदलाल फासिदा है अतर साहब, आपका यही फासिदा है कि तो अरे तो यही बात तो सहारनपुर की रंडियों से उसने कही थी देवबंदी पीर ने कि कराने वाला कौन, करने वाला कौन, वही अल्लाह है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उस रंडी से यही बात कही थी। नहीं उस रंडी ने भी तो यही, उस रंडी से भी तो यही बात की थी उस पीर ने, देवबंदी पीर ने, कराने वाला कौन, करने वाला कौन, वही अल्लाह है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो वही इस्तिलाहात कर रहा हूं। यही लैंग्वेज सुभान सुब्बू में फाजिल बरेलवी ने लिखी इसी तरह। कहाँ है क्या उन्होंने ये करार दिया? शर्म नहीं आती आपको? मैं इधर की बात करता हूँ तो आप छोटी छोटी बात पेलना शुरू कर देते हो। मैंने सब मुताला किया हुआ है, इसीलिए आप मुझसे घबराते हैं बात करते हुए, इसीलिए आप मुझसे घबराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ वे कादियानियों की बात फिर भी रह गई, तो देवबंदी कादियानी को मर्द साले मानते हैं। आप कल कह रहे थे कि नहीं वो जो है उसको काफिर कहते हैं, तो लेकिन ये अरे भाई कबीरी वगैरह को तो छोड़ो, अरे नागपुरी को बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते थे, और भाई मौलाना मोहम्मद नागपुरी साहब का मसला वो एक अलग है, समझे कि नहीं?
अरे वो मसला हो चुका है, पूरी अल्लामा अजहरी मियां के सामने पूरी बहस हो चुकी है, समझ रहे कि नहीं। जिन्होंने जो गुलाम मोहम्मद नागपुरी साहब ने जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के हवाले से फतवा दिया, आपको पता पूरे मामले का क्या है? ये कासिम पठान करता था, उसकी नमाज जनाजा शमीम नूरी ने पढ़ाई, शमीम नूरी ने पढ़ाई, तो उसका फैसला हो नहीं रहा, उसका फैसला तो हो गया उनके खिलाफ बरेली बरेली फतवा नहीं लिया, फतवा नहीं लिया है। वो पूरी बहस रखी गई थी, गुलाम मोहम्मद साहब की शमीम नूरी ने पूरी बहस रखी, और उसमें भी आज कुछ अहबाब आज भी जिंदा है ना, उसमें महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता है पूरी बात का। और अल्फाज आला हजरत के साहबजादे के ये है कि अगर हुक्म शरा अगर यही है तो हुक्म फतवा जो उन्होंने दिया था गुलाम मोहम्मद साहब ने, तो अल्फाज ये है कि उन पर पलटने की बात है वहाँ पर। क्यों इधर उधर की बात करते हो? यही तो हुआ, अरे तो भाई हुक्म शरा लगाने में अच्छा, हुक्म शरा लगाने में कितनी एहतियात की जरूरत है? हाँ जी, जो गुलाम मोहम्मद साहब ने जो उजरत में आकर वो फतवा दे दिया, उजरत में आकर जल्दबाजी में कासिम पठान ने तौबा कर ली थी, दुर्गा पूजा से तौबा कर ली थी, और उस पर गवाही भी मौजूद है कासिम पठान के हवाले से, जो शमीम नूरी साहब ने जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अरे भाई कादियानी की बात करोगे कि नहीं? कादियानी की बात फिर रहेगी, देखो इधर उधर की हर चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ये बात फिर भी रहेगी कादियानी वाली अतर साहब। तो ये आपके गंगोई साहब जो कहते हैं हक वही है जो मेरी जुबान से निकला, ये मर्द अरे अतर साहब वापस में नहीं, आपस में नहीं, आप देश के बहुत बड़े भाई हैं, आप बहुत बड़े हिमायती हैं, आप दिफा करें अब जी। आपके रशीद अहमद गंगोही जो कुतुबुल इरशाद है, जो गौसुल आजम है आपके, अरे ये आपके गौसुल आजम है, तो यहाँ अरे अल्लाह के बंदे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, किसने काफिर करार दिया? किसने काफिर करार दिया? हुसैन मियां साहब नागपुरी ने। अरे काफिर करार दिया, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? आप कौन सी किताब में बताएं मुझे, शर्म नहीं आती? काफिर करार दिया, उनकी चंद खुराफात का रद्द किया है। अरे भाई उनमें जो चंद जो आवाम में जो खुराफात राय थी उसका रद्द किया है हुसैन मियां साहब ने। और मैं बताता मुफ्ती अयूब साहब ने, मुफ्ती शमशाद साहब जो मुरादाबादी है, मुफ्ती अयूब साहब जो बदायूनी है, उन्होंने फजाने सुन्नत पर एतराज किए थे, समझ आई? आपको पता तो कुछ है नहीं, मुझे हर चीज का है, मैंने कहा नहीं मुझसे बात किया करो तो सोच समझ के किया करो, आप हर चीज की तहकीक रखता हूँ मैं, अभी समझ आई आपको? अरे में नहीं, ये आपके बहुत करते हैं। अरे ये गौसुल आजम भाई कोई उसका नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी एक ही ग्रुप है, ये वही सवाद आजम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मा अना अलैहि व अस्हाबी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर अमल पैरा है। हाँ जी, लेकिन ये आपके रशीद अहमद गंगोही साहब, आपके कुतुबुल इरशाद, मैं फोन काट रहा हूँ, नहीं, अब आप नहीं सुनेंगे, अब मैं फोन काट रहा हूँ, अब मैं काट रहा हूँ फोन, आवाम सुन के खुद फैसला कर लेगी। मुझे नंबर दे दें आप, मुझे नंबर दे दें, अरे मुझे नंबर दे दें, अरे मुझे नंबर दे दें उनका, मुझे नंबर दे दें उनका मुझे नंबर दे दें, मैं खुद बात कर लूंगा, अरे मैं खुद बात कर लूंगा, मुझे आप नंबर दे दें, ऑडियो लंबी हो रही है जिससे बात करानी है। अरे भाई मुझे नंबर दे दें उनका, लेकिन आप कितने बड़े जलील और रुस्वा हो रहे हैं, आवाम सुनेगी फैसला कर लेगी, आप मुझे नंबर सेंड कर दें, बस इतना काफी है। मैं चाह रहा हूँ अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको तौबा की तौफीक दे। और अहमदाबाद अतर साहब मेरी बात सुने, जब भी अहमदाबाद तशरीफ लाएं तो मुझसे जरूर मुलाकात कीजिएगा, हो सकता है मेरे ऊपर जब आपकी नजर पड़ेगी तो अल्लाह ताला आपके दिल में तौबा की तौफीक डाल दे और आप मेरे हाथ से तौबा कर लें। चलें, अल्लाह हाफिज।